Chapter number 8 Sakshi Bhutah Manushya. Manushya means man and Sakshi means it is a witness. Who is the witness? Man as a witness. In this world, good and bad incidents happen at every place in every moment. Sometimes good or sometimes bad, some happening in every moment or every place. Various objects existing on the earth in context with each other are becoming witnesses of these incidents. They are becoming a witnesses also, and sometimes they are becoming a reason for the accidents. Non-living objects like stones, etc., and living beings like birds, animals, human beings have the chance to witness these happenings. They are because of these things. Who is suffering from this? Birds, animals and human beings are affected by stones. So how it can be happen? So that we are going to learn. Because of one's peculiarity, these witnessing objects play a different role. So how they are becoming witnessing? So they are playing a different role. Non-living thing, objects like stone without doing anything become witness of any incident. How stone can happen? How stone can affect to anyone without doing on the place as it is they are lying, but without doing anything become witness of any incident. Beasts like cow, etc., run away from place of accident and try to save themselves. They are a beast or animals, so they can't do anything, but they are one thing they are doing because of this voice pollution. They are running to save themselves. Nothing else we expected from both of them except this type of behavior. They are a animal. They are a pet animal. They can't do anything. They can't shout. They can't ask for help. They can do just one thing, to run away from that place for saving themselves. But man's situation is a little different from them. Yes, it is true. Man only can do. We have one mind, we have two hands, we have leg, we have mouth also. From that we can speak also to someone about this incident. God has given to us both hands, so we can do help of someone, those who are having in a bad situation. But man's situation is a little different from them. Such as a person witnessing accident feels sorrow for the afflicted person. We are having a heart also. From that we are feeling sometimes sorrow, sometimes happiness, sometimes sympathy to someone. So accident feels sorrow for the afflicted person. He also becomes active to help the victim and thus performs his duty. They can perform their duty also. What they should do first when accident take place. So when some human is standing in front of them, so what they can do? What should be first duty of them? He also tries to learn lesson from it. Nowadays, due to heavy traffic, many road accidents take place. In this situation, many things are expected from the eyewitness, but they are also not fulfilled. So, it is the duty of a witness person that he should be ready to perform his duty. The lesson presented here in dialogue from suggests the same. So now, which kind of things were happening in a road accident? मार्गे घटमानायाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति किं किं च ते आचरन्ति इति विषयमधिकृत्य पुनीतो सुनीतो परस्परं संवदत. मार्गे in a road, on a road. घटमानाया means happening. दुर्घटना means accident. साक्षिणः के भवन्ति, जो साक्षी होता है, जो आई विटनेस होता है. What they are doing? के भवन्ति. What thing can happen? What they do? किं ते आचरन्ति. What they should do if something happen on a road. इति विषयम अधिकृत्य. इति विषयम अधिकृत्य means based on this topic, in this subject, punita sunito. Here it is a itterator dandra samas because punita sunito, two person. So it is a punitah cha sunitah cha, itterator dandra samas. Parasparam, each other,
संवादतः both of them are discussing about these things. Which things they are discussing? About road accidents. पुनीतः भ्रातः ब्रदर मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति. Sometimes accident also take place on the way. मार्गे means on a road, कदाचित sometime, दुर्घटना accident, अपि घटन्ति means sometime accident take place on a road. तत्र प्रायः प्रस्तर आदयो जड़ पदार्था गवादय पशवः मनुष्य च इति त्रय साक्षिणः भवन्ति. When this time there are mostly three types of witnesses are there, and inanimate things, in non-living things, like a prastar means it is about stone. They are jad padarth, they are non-living, they don't have life. Gav adayah means cows, pashavah beast, animals, manushya cha iti human beings, traya sakshinah bhavanti. These kind of three things can get witnesses of all these road accidents. किं त्वं जानासि यत् घटिता दुर्घटना संदर्भे एते त्रयो अपि भिन्नं भिन्नं कर्म समाचरन्ति. डू यू नो? किं त्वं जानासि? डू यू नो यत् हाउ घटिताया दुर्घटनाया, दिस दुर्घटना मीन्स दिस रोड एक्सीडेंट हैपनिंग, दिस एक्सीडेंट्स हैपनिंग इन दैट संदर्भ, in that topic. एते त्रयो अपि, these three things, भिन्नं भिन्नं कर्म समाचरन्ति. These three act differently. So how it can happen by them and how they are having involvement in that? सुनीतः न जानामि, I don't know. प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति. No, I don't know. Please tell me first, what do the stones etc. do? Prastar adaya means stone, adaya means etc. So pratham, tell me first that what can they do? Stones and all, kim kurvanti, what they do? Tell me first. Punitah prastar adyastu achetana santi. Stone etc. they are non-living thing. They don't have life. The stones and all are non-living. ते स्वयं क्रिया कर्तुं समर्था न भवन्ति. They are not able to do anything by themselves. They are stone. They are just lying as it is. They are not able to do anything by themselves. अतः ते तथैव तिष्ठन्ति. So they stay as they are. They will not move from their place. They are lying on the road as it is. सुनीतः सचेतनाः पशवः पक्षिणः च किं कुर्वन्ति. So in animate living, sachetana means those who are having life. Pashavah means animal, beast, pakshina cha. So that animals like any birds and beast, kim kurvanti, what they do? All these are what beast and birds who are living being to do, what they do. एते घटनाया उत्थितात ध्वने भयानम अनुभवति. What happened? They are, because of sound, they are happening fear. All this experiencing fear due to noise arisen by the accident. Ete ghatanaya, from this kind of things, uttitat dhvani. Because of voice pollution, bayanam anubhati, they are feeling fear. Atah ghatana sthalata dure dhavanti. What they should do first? They are running from that voice. So they run away from the place of accident. Dhavanti means they are running. Ghatanasthala means place of accident. They are going or running somewhere else. In that what happens? Sometimes they are running. What happens? In sometime train also front of that coming. Sometime trucks also coming. So they are not watching what is coming in front of them. They are just running. And because of this voice pollution, they are also getting एक्सीडेंट बाय दिस वॉइस पॉल्यूशन. ये जो आवाज़ होती है उसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, एनिमल्स की, क्योंकि दे डोंट हैव माइंड. दे आर नॉट वॉचिंग दैट सामने से ट्रेन आ रही है या ट्रक आ रहा है. दे आर जस्ट रनिंग अवे एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉइस पॉल्यूशन दे आर ऑल्सो हैविंग एक्सीडेंट.
सुनीतः सत्यं वदति भवान् मीन्स what you say it is true. Yes, you are saying what is you are saying it is true. But गवादय पशवस्तु निर्बुद्ध्य सन्ति. So निर्बुद्ध्य means they are not having mind. गवादय पशवस्तु निर्बुद्ध्य सन्ति means they are not having a intelligence. They are dull by mind. परंतु कश्चित् सबुद्धि मानवो अपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तहि पशुरेव सः. परंतु कश्चित् सबुद्धि but if man having intelligence मानव अपि human also man also running from the accident place घटनास्थलात् दूरे धावति. If human also running from the accident place तहि पशुरेव सः. Then पशुरेव it is a पशुरेव means it is a पशुः एवः. पशुः एवः. So pashu evaha means only a beast. We are only a beast. If human also running from that place, so what is the difference between human and beast? They are also like them. Punitah vastu tastu means it is a vastu tah tu. Manushyah इववत् वर्तते तदा स दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविध कार्यम् आचरन्ति. If man is there, if it is but actually if a man behaves like a man, he performs 3 type of work. So यदि मनुष्य इव वर्तते, if human being doing like that, so if they want to do really something for living thing, तदा स दुर्घटनाया in accident साक्षी भूत्वा those who are witness त्रिविध कार्यम् आचरन्ति. He performs 3 types of duty. सुनीतः कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि. So here it is all sentence, maximum sentences are of a बहुवचन. कानि कानि means what kind of tani, what are those works are there. So what are those 3 types of work. कौन से कार्य है जो करने चाहिए जो ह्यूमन बीइंग को विच ड्यूटीज ह्यूमन शुड परफॉर्म फर्स्ट. पुनीतः प्रथमं कार्यम अस्ति दुख अनुभूति. सबसे पहले तो आप में फीलिंग्स होनी चाहिए. यू डोंट थिंक जो पढ़ा है वो आपका सगा संबंधी नहीं है, वह किसी का भी स्वजन हो सकता है. वी शुड नॉट वेट और वी शुड नॉट कॉल एंड वेट फॉर देयर रिलेटिव्स. पहली जो जिम्मेदारी होती है, जो ड्यूटीज़ होती है ह्यूमंस की एज अ ह्यूमन बीइंग, वो क्या है. उस इंसान को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना, उसकी सारवार करना, उसको दवा देने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाना. दुखम अनुभूति. आपको अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये इंसान कितनी बुरी हालत में है, कभी भी मर सकता है. सो वॉट आवर ड्यूटी शुड फर्स्ट टू टेक देम टू हॉस्पिटल्स. मीन्स वी हैव टू फील सॉरो फॉर देम. We have to experience for sorrow for them. मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवति अर्तुई सुखेन च सुखित. मनुष्य को क्या करना चाहिए. मनुष्य को उसके दुख में दुखी और सुख में सुख का अनुभव होना चाहिए. ये ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अस. वी शुड ऑलवेज हेल्प टू देम. हमें उनको हेल्प करना चाहिए. अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तं दुखितं च न दृष्ट्वा मनुष्येण दुःखानुभूति करणीया भवति. जब पीड़ाग्रस्त जो होता है, अगर किसी के पैरों में प्रॉब्लम आ गई हो, किसी की तकलीफ हो गई हो, सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट. दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्त, जो पीड़ा से तकलीफ में है, जो पीड़ा से तकलीफ में जो है, उसको क्या करना है. दुखित जन दृष्ट्वा. अगर हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं, जन्म दृष्टा ऐसे लोगों को जब देखते हैं, मनुष्येण दुखन अनुभूति, मनुष्य को दुख का अनुभव करना चाहिए. करणीय भवति मीन्स वी हैव टू फील सॉरो. यह खलु एतादृश जीवं पश्यन् अपि दुःखं न अनुभवति स मनुष्य न अस्ति अपितु सः प्रस्तरः एव.
यह खलु एतादृश इफ वी रियली विल नॉट फील लाइक दिस जीवम पश्यन अपि दुखम न अनुभवते। अगर हमको उसको देखकर पीड़ा इसकी पीड़ा को देखकर अगर हमारे अंदर जो दुख का एहसास है, जो पीड़ा का एहसास है वह नहीं होता है, स मनुष्य ऐसा मनुष्य न अस्ति, दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, अपितु वो भी क्या है, सह प्रस्तर एवं, वो भी पत्थर के समान है। अगर आपको किसी के दुख में दुखी और सुख में सुखी और पीड़ा का अनुभव नहीं है तो आप भी पत्थर के समान हो जो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे पड़ा पड़ा देख रहा है। यह तो ही प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति। वैसे तो प्रस्तर जो होता है, जो पत्थर जो होता है, कदापि अन्य से दुख न अनुभवती, वह क्या करता है, किसी का दुख वह अनुभव नहीं करता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन्स पेन और एनी ग्रीफ, दे आर जस्ट वॉचिंग। सो वी आर लाइक अ स्टोन इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी आर जस्ट वॉचिंग। सुनीतः यथार्थ भवान आह, यस भवान आह यू से दैट इज़ अ प्रॉपर। ये सही बात है कि अगर हम पत्थर की तरह पड़े रहेंगे तो हम में और पत्थर में कोई अंतर नहीं है। सो व्हाट इज़ यू आर टेलिंग, दैट इज़ अ प्रॉपर। मय अपि बहुधा अपरिचितम, अपरिचितम इट इज़ अ न परिचित, यानी जिसको हम नहीं पहचानते हैं। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, मगर इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते हमें इतनी तो दया भावना होनी चाहिए कि अगर वो हमारे सगे संबंधी ना भी हो, मय अपि अपरिचित भी हो, तो हमें उसको उसके दुख का अनुभव होना चाहिए और उसको तकलीफ से बाहर निकलना चाहिए। मय अपि बहुधा अपरिचितम दुर्घटनाग्रस्तम जनम पश्यता दुखम अनुभवतम अस्ति। सो व्हाट हैपन, दुर्घटनाग्रस्त मीन्स दोज हु आर दुर्घटनाग्रस्त, इट इज़ अ तृतीय तत्पुरुष समास। द पर्सन हु इज एफ्लिक्टेड बाय एक्सीडेंट, जनम पश्यता वॉचिंग बाय देम, दुखम अनुभूतम अस्ति। दुखम अनुभूतम अस्ति मीन्स सॉरो हैज़ बीन एक्सपीरियंस बाय मी। मुझे भी दुख होता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। सो आई एम फीलिंग दैट फीलिंग्स मीन्स आई हैव सम सिंपैथी और सम पीटी ऑन दोज हु आर हैविंग एक्सीडेंट। तृतीय कार्य किम अस्ति, व्हाट इज द सेकंड थिंग विच वी हैव टू डू, कौन सा द्वितीय कार्य जो हमको करना है। पुरीतः द्वितीय कार्य तो कर्तव्य से निर्वाह, कर्तव्य से यानी ड्यूटी, जो हमारी जिम्मेदारी है। एक इंसान होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, विच ड्यूटी वी हैव टू परफॉर्म। सो दे आर टेलिंग अबाउट अवर ड्यूटीज। तृतीय कार्य टू कर्तव्य से निर्वाह, दूसरा कार्य है हमारी जिम्मेदारी, यानी जो हमारा जो ड्यूटी है उसको हमें परफॉर्म करना। दुर्घटनाग्रस्त जनः सद्य एव औषधालय आश्रित करणीय भवति, मीन्स जिसको तकलीफ है उसको क्या करना है, औषधालय आश्रित करणीय मीन्स दे शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ये न तस्य उचित उपचार स्यात्। सो उसका जो भी इसको तकलीफ है, अगर उसको सबसे पहले कार्य क्या करना है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। वो तो असहाय है, वो मदद नहीं मांग सकता है, मगर हमें उसको इस हालत में देखकर उसका सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। यानी हमें हॉस्पिटल को फ़ोन करना कि यहाँ पर ऐसी हालत हुई है, सो दे विल कम फास्ट, दे विल टेक देम टू द हॉस्पिटल्स, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक देम टू द हॉस्पिटल। तत्र संगत्य कदाचित तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति च इति। सो क्या हो सकता है कि समटाइम तत्र संगत्य मीन्स उन लोगों को कभी द विक्टिम हैविंग गॉन विद दैम, तस्मै रक्त से आवश्यकता, अगर रक्त की आवश्यकता होती है, इफ़ दे आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्लड, स्वकीयम रक्तम अपि तस्मै दातव्यम भवति। यानी इवन वंस हु ओन ब्लड ऑल्सो वी कैन गिव इट टू देम, टू दोज हु आर द हैविंग प्रॉब्लम। जिसको तकलीफ हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले हो सके तो जो खून बह गया है उनका, उसके लिए हम हमारा खून भी उसको डोनेट कर सकते हैं। तस्य परिवार सूचना दातव्य मीन्स वी हैव टू इन्फॉर्म टू देयर फैमिलीज
to in their families we have to inform कि your this family member is lying in hospital because of some accidents took place on a road. So सूचना दातव्या भवति येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य तस्य विशेषः सहायो भवत. Then what we should do, हमको उसको we should inform to their family, so family members can come to the hospital. और जो सहाय होती है, जो फाइनेंशियल भी सहाय होती है या तो कुछ भी तकलीफ़ होती है जो पीड़ित को, तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको तकलीफ़ से बचा सकते हैं. दुर्घटनायां साक्षिणः मनुष्यस्य एतादृशं कर्तव्यं सर्वे मनुष्याः अस्य कर्तव्यस्य निर्वहणः करणीयः एव. सो वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी. और क्या करना है उनको, मनुष्य का यही मनुष्य का कर्तव्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. दुर्घटना साक्षिण जिसने वो देखा है, यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है. सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्य से निर्वाह करनी है. सब ह्यूमन बींग को, टू ऑल ह्यूमन बींग्स दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो जो भी है उनको उनका ड्यूटी परफॉर्म करना ही चाहिए. दे शुड फॉलो दिस काइंड ऑफ ड्यूटीज. सुनीतः तृतीयकार्य किम् अस्ति यद् घटनायाः साक्षी मनुष्य आचरेत. सो व्हाट इज द तृतीय द थर्ड duties, what you are telling about the third duties, what is the third work that man who is witness of the accident should do. पुनीतः तृतीय कार्यम अति बोध प्राप्ति. What is the third work? We should get lesson. We should learn from this incident कि हमें भी अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए. द थर्ड वर्क इज अ लर्निंग अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट. मनुष्येण सदैव बोध प्राप्तये प्रयत्नः करणीयो भवति. मनुष्य को हमेशा, मनुष्य के पास भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है जिससे वह बहुत कुछ सोच सकता है. दो हाथ दिए उससे बहुत कुछ कर सकता है. सो पहली ड्यूटी क्या है, जो हमारे अंदर हृदय होता है उससे हमें किसी के दुख की अनुभूति करना. दूसरी हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमारे जो भगवान ने जो दो हाथ दिए हैं उससे हम किसी की सहाय कर सकें, किसी को मदद कर सकें. और तीसरी हमारी जो भगवान ने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ दी है, हमारा दिमाग. उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी के पास किसी के ऐसे बुरे जो इंसिडेंट होते हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ताकि हम उसको फिर से ऐसा न करें, हम उसको दोहराए नहीं. मनुष्य ने सदैव बोध प्राप्त है प्रयत्न करणीय भवति. हमेशा वी शुड लर्न द लेसन ऑलवेज फ्रॉम द एनी मैन. जो तकलीफ हुई है उस इंसान से भी वह कुछ सीख सकता है. यदा वयं कस्याश्चित् दुर्घटनायाः साक्षिणं भवामः तदा कर्तव्यसमाचरन्तः दुःखम् अनुभवन्तः तस्याः दुर्घटनायाः कच्चित् बोधम् अपि प्राप्तुम् अहम्. सो उनको क्या करना है, व्हेन वी आर विटनेस ऑफ सम इंसिडेंट्स while experiencing sorrow, performing our duty, we can also learn some lesson from that accident. हमें भी उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से we can learn our duties also. हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए. हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें इससे दुख का अनुभव भी होना चाहिए जिससे कि वह पीड़ा कभी भी किसी को भी हो सकती है, या तो हमारे स्वजन को हो सकती है या तो हमें हो सकती है. तो हमें भी यह सीख मिलनी चाहिए कि हम ना तो ये होने दें ना तो किसी को करने दें. बिना कारणम दुर्घटना न भवति. विदाउट एनी रीज़न एक्सीडेंट डज नॉट टुक प्लेस. एक्सीडेंट डज नॉट अकर विदाउट सम रीज़न. तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटि कारणं भवति. बिकॉज ऑफ इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कस्यचित् जनस्य, किसी की जो मिस्टेक होती है उसकी वजह से किसी और को उसकी भरपाई करनी पड़ती है. करता कोई है और भरता कोई है. बिकॉज ऑफ सम इन दैट मिस्टेक सम इज द रीज़न. मिस्टेक कोई करता है और उसका कारण कोई बनता है. कस्यचित् जनस्य त्रुटि, किसी और की तकलीफ से, किसी और की मिस्टेक से कोई और उसका कारण बन जाता है, तकलीफ में आ जाता है. सा त्रुटि ज्ञातव्या. सो ये जो ड्यूटी है, जो त्रुटि है यानी जो मिस्टेक है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए.
we should know the reason. So we should be always run for the good things. हमें हमेशा जो त्रुटि है उसकी जो कैसे हुई है मिस्टेक, क्यों हुई, अगर हुई तो क्यों हुई, अगर उसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए, यह हमें समझना चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए. तदा अनंतरम तादृशीं त्रुटिम अहम न कदापि करिष्यामीति बोधो अपि प्राप्तय एव. वी शुड लर्न द लेसन दैट त्रुटिम अहम न कदापि मैं करिष्यामी, मैं ऐसी जो मिस्टेक हुई है मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा. आई विल नॉट डू दिस फॉर विच इज़ हैपन हियर. और हमें यह सीखना चाहिए कि यह हम ना करें. बोध अपि प्राप्तय. सो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि आई शैल नेवर कमिट सच अ मिस्टेक शुड ऑल्सो बी एक्वायर्ड. तो यह हमें जो मिस्टेक हुई है यह हम नहीं करेंगे, फिर से हम उसको नहीं दोहराएंगे, उसकी सावधानी बरतेंगे. अगर कोई ऐसी मिस्टेक करता है तो हम उसको रोकेंगे, अगर हमसे होती है तो हम उससे सीखेंगे और कोई आगे चलकर ना करे ऐसी तकलीफ़ या मिस्टेक ना करे उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सुनीतः साधु कथितम भवता. यस, you have said that is very good, that is truth, very proper you are saying. घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यं निर्वहन्तो अपि दुःखम् अनुभवन्तो अपि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्नुं तदा वयं मनुष्या न स्मः. मीन्स when witnessing of an incident, अगर हम उसका विटनेस होने के बावजूद if we are not performing, even performing our duty, feeling sorry, otherwise feeling sympathy for someone, also if we do not learn a lesson, we are not a human beings. कर्तव्य निर्वहन्तो अपि means after performing duties, दुःखं भवन्तो अपि यानी after feeling sorrow or for feeling sympathy for someone, यदि if वयं बोधपाठं न प्राप्नुं, if we are not learning lesson from this, तदा then वयं मनुष्या न स्मः. तो हम इंसान नहीं हैं, हम पत्थर जैसे ही हैं. ये तो सिर्फ एक्सीडेंट की बात है, बट स्टूडेंट्स इन आवर एवरी टाइम, इन एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग अ लेसन. एवरी टाइम वी आर इन अ क्लास, एट एवरीवेयर, इफ यू विल सी प्रॉपरली, समटाइम्स ईच एंड एवरीवेयर, एवरी प्लेस वी आर लर्निंग अ लेसन. कोई तकलीफ़ हर जगह किसी न किसी को तो होती है. सिर्फ एक्सीडेंट के अलावा बहुत सारी तकलीफ़ें होती है जो इंसान को होती है. कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, बट जीवन के हर पहलू में से हमको सीख लेनी चाहिए जिससे हम उसको फिर से ना दोहराए. हमारे जीवन का हमें नियम बनाना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है वह हमें करना ही है. एक्सेप्ट दिस रोड एक्सीडेंट, मैनी थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर रूटीन लाइफ. और वी शुड कीप इन माइंड कि ये मिस्टेक हुई तो हम इसको फिर से नहीं दोहराएंगे, फिर दूसरे काम में ऐसी तकलीफ हुई तो ये मिस्टेक हम फिर से नहीं दोहराएंगे. ऐसे कर करके हमें परफेक्शन आता जाता है और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ही उम्दा व्यक्ति हो जाते हैं. और सो स्टूडेंट्स, लर्न योर ड्यूटीज एंड डू योर वर्क प्रॉपरली. सो आई एम हियर सेंडिंग यू नोट्स एंड यू हैव टू राइट मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन इन योर वेब. थैंक यू.